రాష్ట్ర విభజనపై రాజ్యసభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రధాని మోదీ. కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర విభజన సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఉండేవి కావన్నారు. రాష్ట్ర విభజనకు తాము వ్యతిరేకం కాదన్న మోదీ ఏపీకి కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసిందని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర విభజనపై రాజ్యసభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రధాని మోదీ. కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర విభజన సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఉండేవి కావన్నారు. రాష్ట్ర విభజనకు తాము వ్యతిరేకం కాదన్న మోదీ ఏపీకి కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసిందని ఆరోపించారు. लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। రాష్ట్ర విభజనపై రాజ్యసభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రధాని మోదీ. కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర విభజన సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఉండేవి కావన్నారు. ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఢిల్లీ నుంచి రాజు లైవ్ లో అందిస్తారు. రాజు, సంతోష్, ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ఎంపీలు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కావచ్చు,
మరోవైపు తెలంగాణ నుంచి కావచ్చు, అటు రాజ్యసభలో కానీ లోక్సభలో కానీ ప్రధానంగా ప్రశ్నిస్తుంది ఒకటే, ఏదైతే విభజన సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఏదైతే విభజన చట్టంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఇప్పటి వరకు కూడా నెరవేర్చడం లేదు, వీటిని వెంటనే నెరవేర్చాలంటూ డిమాండ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది. అయితే దీనిపైన ఈరోజు రాజ్యసభలో ఏదైతే రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి సంబంధించిన సమాధానం ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రధాని ఈ విషయాలను లేవనెత్తినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఆ సమయంలో కనుక సరిగ్గా విభజన చేసి ఉంటే ఇవన్నీ ఉత్పన్నం అయ్యి ఉండేటివి కావు. అంతేకాదు ఆ రోజు పూర్తిగా మైకులు ఆపేసి పూర్తిగా పెప్పర్ స్ప్రేలు వాడినటువంటి పరిస్థితిని కూడా సభలో తీసుకువచ్చారంటూ ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా మోడీ వాటన్నిటిని గుర్తు చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. అయితే అందరితో మాట్లాడి సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఈరోజు విభజన సమస్యలు అటు ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య ఇటువంటి ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తేవి కావని చెప్పి మోడీ స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. అంతేకాదు ఈ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి మేము ఎక్కడా కూడా విభజనకు సంబంధించి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఈరోజు ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదని చెప్పి ఆయన స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపించింది. మరోపక్క ఏదైతే వాజ్పేయి హయాంలో జరిగినటువంటి విభజనను కూడా గుర్తు చేశారు. అటు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, జార్ఖండ్, ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించినటువంటి విభజనలను కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. పూర్తిగా అన్ని పార్టీలతో మాట్లాడి అంతేకాదు పూర్తిగా చర్చించిన తర్వాతనే విభజన చేయడం వల్ల అవి శాంతియుతంగా విభజన జరిగాయి. సో దీనివల్ల కనీసం అంటే గతంలో ఏదైతే ఏపీగా అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎంపీలు అనేది చాలా కీలకం, వాళ్ళ వల్లే కాంగ్రెస్ అధికారంలో కేంద్రంలో కూర్చుంది, కానీ వాళ్ళ విభజన విషయంలో మాత్రం సరిగ్గా న్యాయం చేయలేకపోయింది. చివరికి దానివల్ల కాంగ్రెస్ నష్టపోయిందని చెప్పి కూడా అటు ప్రధాని రాజ్యసభలో మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి చూసాము. అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటికి కూడా పరిష్కారం కనుక విభజన సమయంలో సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఇవన్నీ ఇబ్బందులు తలెత్తేవి కావని చెప్పారు. అంతేకాదు కాంగ్రెస్ను మాత్రం కొంత ఏదైతే ఘాటుగానే స్పందించారని చెప్పుకోవచ్చు. విభజన సమయంలో ఏదైతే అధికార మత్తులో విభజన చేశారు, సో దానివల్ల ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని చెప్పి అటు పీఎం స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపించింది. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా ఈ ఇబ్బందులకు అన్నిటికీ కూడా కాంగ్రెస్ రాజకీయాలే కారణం అంటూ కాంగ్రెస్ను టార్గెట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు సభలో కనిపించింది. మొత్తానికి ఏదేమైనా ఏదైతే విభజనకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం అటు ఎంపీలు పదే పదే లేవనెత్తినటువంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రధాని రాజ్యసభలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సంతోష్. థ్యాంక్ యూ రాజు. तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाद इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था? कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बोम्बई की सरकार को किसने गिराया था? 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था? उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था? 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था? आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी? और वो भी जब वो बीमार थे। वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई, उसके साथ क्या किया? जिस केंद्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया?
उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या ये लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था? कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बम्बई की सरकार को किसने गिराया था? 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था? उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था? 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था? आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और वो भी जब वो बीमार थे? वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई, उसके साथ क्या किया? जिस केंद्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या ये लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए
किसने डरते टिकट का उपयोग किया था? कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बोम्बई की सरकार को किसने गिराया था? 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था? उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था? 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था? आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और वो भी जब वो बीमार थे? वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई? उसके साथ क्या किया? जिस केंद्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे? राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की, और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है।